Hello friends, today the promise is for you and for your generation. हेलो दोस्तों, आज का वचन आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए है। When we are faithful, the Lord blesses us and blesses our generation also. जब हम लोग वफादार रहते हैं, प्रभु हमें और हमारी पीढ़ी को आशीष करते हैं। That's what the Bible says in Isaiah 27:6. इसी बात को बाइबल के यशायाह 27 वचन 6 में लिखा गया है। In days to come, Jacob will take root. भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा, Israel will bud and blossom and fill all the world with fruit. और इस्राएल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएंगे। What a beautiful promise. कितना सुंदर प्रतिज्ञा वचन है। In this verse we see two parts. First, Jacob will take root. इस वचन को हम दो भाग में पढ़ सकते हैं। पहले, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा। Only when Jacob takes root, Israel will bud and blossom. जब याकूब जड़ पकड़ेगा तभी इस्राएल फूलेगा और फलेगा। Only when you are faithful to the Lord and to His calling, your generation will be blessed. वैसे ही आप प्रभु के लिए वफादार बनोगे तो आपकी पीढ़ी आशीषित रहेगी। In order for that to happen, we have to be so close to the Lord. ऐसा होने के लिए आपको प्रभु के बहुत करीब रहना अवश्य है। The Bible says, draw close to God and He will draw close to you. बाइबल में लिखा है, तुम प्रभु के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आ जाएगा। So today, if you're far away from Jesus, it's never too late to run back to Him. अगर आप प्रभु मसीह से दूर हो तो आज भी देरी नहीं है, आप प्रभु के पास दौड़ सकते हो। Read the Bible daily. बाइबल को प्रतिदिन पढ़िए। Note down all the promises that He has given उन्होंने जो भी वादे किए हैं उन सभी को लिख लो and become so close to the Lord. और प्रभु के बहुत करीब आ जाओ। Take root, and when you do that, your generation, your children will be blessed. आप लोग जड़ पकड़ लो। जब आप लोग जड़ पकड़ोगे तो आपकी पीढ़ी आशीष पाएगी And they will also start bearing fruit. और वे लोग भी फल देना शुरू करेंगे। We know that a tree will be judged by the fruit it bears. हम जानते हैं कि एक पेड़ को उसके फल से ही तोला जाता है। In the same way, the fruit that we bear in this world matters to the Lord. ठीक उसी प्रकार इस संसार में हम जो फल देते हैं वह प्रभु के लिए मान्य रखता है। Whatever we do in this world matters to the Lord. इस दुनिया में हम जो भी करते हैं वह प्रभु को बहुत मायने रखता है। And the Lord will surely bless you and your generation. प्रभु आपको और आपकी पीढ़ी को अवश्य आशीष करेंगे। The Lord says every unnecessary word that we speak will be accounted for. प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा बोले गए हर अनावश्यक शब्द का हिसाब लिया So जाएगा। let's be careful about how we spend our time and spend our talents for Jesus. इसलिए हमें यीशु के लिए समय और प्रतिभा खर्च करने में सावधानी बरतानी चाहिए। Let's pray together. चलिए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord, for this wonderful promise. धन्यवाद प्रभु इस अद्भुत वचन के लिए। Help us to be so rooted in Christ. हमें मसीह में इतनी दृढ़ता से जुड़े रहने में मदद करें। Help us to become so close to you, Father. हमें आपके नजदीक आने में मदद कीजिए पिता। Lord, when we do that, as you promised, Lord, bless all the हे families. पिता, आपके वचन के अनुसार करने पर आप हमारे सारे परिवार को आशीष कीजिए। Lord, bless our children and our प्रभु grandchildren. हमारे बच्चों को और पर पोतों को आशीष कीजिए And help us to always bear fruits. और हमें हमेशा फल देने में मदद करें। In Jesus' name I pray. Amen. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। So my dear friends, I also want to tell you about the family blessing plan. मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप सबको फैमिली ब्लेसिंग प्लान के बारे में बताना चाहती हूँ। For your family to be founded on God's finest blessing, enroll your family आपके also. परिवार की नींव प्रभु के सर्वोत्तम आशीर्वाद पर टिके रहें, इसलिए आपके परिवार को एनरोल And कीजिए। there are people in the prayer tower who pray over your families every single day. प्रेयर टावर में रहने वाले आपके परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। What a blessing it is that somebody is praying for you and for your children every single day. कितने आशीष की बात है कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए प्रतिदिन कोई प्रार्थना करता है। So enroll yourself and your family today, and the Lord will surely bless all your efforts and your sacrifice. इसीलिए आज ही आपके परिवार को एनरोल कीजिए। प्रभु निश्चित रूप से आपके प्रयासों और बलिदानों को आशीष करेंगे। Precious brother Suresh Masih and sister Barkat Masih, happy 50th wedding anniversary. Congratulations. Praise the Lord. We rejoice with you and thank God for this great blessing. प्यारे भाई सुरेश मैसी और बहन बरकत मैसी, आपको शादी की 50वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो, प्रभु की स्तुति हो। हम आपके साथ आनंदित होते
होते हैं और इस महान आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Deuteronomy 7:14, you'll be blessed more than any other people. व्यवस्था विवरण 7:14 के अनुसार परमेश्वर आपको हर किसी की अपेक्षा अधिक आशीष देंगे। Lord bless Brother Suresh, let the left finger be healed in Jesus' name. In Jesus' name, let it be normal. And Sister Barkat, have an own house and spiritual grace. प्रभु भाई सुरेश को आशीष दीजिए, यीशु के नाम से उनकी बाईं उंगली ठीक हो जाए, सब कुछ सामान्य हो जाए और बहन बरकत का अपना खुद का घर हो और उन्हें आत्मिक अनुग्रह की प्राप्ति हो। Shabina, heal, Lord, heal her, Lord, heal her, give her salvation. हे प्रभु शबीना को चंगाई दीजिए, प्रभु जी उसे ठीक कर दीजिए और उसे छुटकारा प्रदान कीजिए। And Renuka, have a good job. और रेणुका को एक अच्छी नौकरी मिले। And Anugrah, have wisdom and great health in Jesus' name. और अनुग्रह को ज्ञान और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कीजिए यीशु के नाम से। Amen. God bless you. Shobha Chakre, happy birthday. शोभा चक्रे जन्मदिन मुबारक हो। God bless you according to Isaiah 58:8. Your healing will quickly appear. यशाया 58:8 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी चंगाई शीघ्र ही प्रकट होगी। Shobha's hand be healed, Lord. Fracture dissolve and let every organ become normal in Jesus' name. हे प्रभु शोभा का हाथ चंगा हो जाए, यीशु के नाम से हड्डी का फ्रैक्चर ठीक हो जाए और उनके सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करें। Nishant, heal the muscle problem, Lord, and let him be well. Let there be healing in this home. No more sickness. Release them, Lord. Keep them well in Jesus' name. हे प्रभु निशांत मांसपेशी की समस्या से चंगाई पाए और बिल्कुल ठीक हो जाएं। इनके घर में चंगाई का संचार हो, अब और कोई बीमारी ना रहे। हे प्रभु इन्हें छुटकारा दीजिए, इन्हें स्वस्थ रखिए यीशु के नाम से। Amen. God bless you.